اور ایک روایت سے آپ کو بولوں گا کہ ابو جہل قریش کے لوگوں کو بولا تھا کہ وہ نقصان پہنچائے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رہیں گے، اور جب ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے جا رہا ہی تھا تو وہ ایسی چیز دیکھا، خوفناک چیز دیکھا جو کہ اطراف کے لوگوں کو نہیں دکھی، وہ اس چیز کو دیکھ کے وہ ڈر کے پیچھے بھاگا اور بولا یہ جادو ہے، یہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، مگر ایک خوفناک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بولتے ہیں کہ وہ فرشتے تھے جو کہ میری پروٹیکشن کر رہے تھے، اور اگر ابو جہل ذرا سا بھی قریب آ جاتا اور ہاتھ لگا دیتا تو اسے اسی وقت کچل دیتے تھے۔ تو آپ سمجھ رہے اینجلز مکہ مدینہ کا سوارڈز کے ساتھ کیا قسم کا گارڈ کر رہے ہوں گے، جو کہ وہاں پہ شیاطین نہیں گھس سک رہے، وہاں پہ دجال نہیں گھس سک رہا۔ تو آپ سوچو وہ دجال جو بے انتہا شیطان طاقتوں کے ساتھ اندر گھسنے کی کوشش کریں گا، پورے دنیا کو رول کر لیں گا، مگر مکہ اور مدینہ انٹر نہیں کر پائیں گا۔ کیا قسم کے اینجلز ہوں گے، خوبصورت اور طاقتور، جو کہ گارڈ کر۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جن کا نام ابو معلق تھا، جو کہ ون آف دا ممبرس آف دا انصار تھے and one of the companions of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم from مدینہ۔ یہ سٹوری کا چین آف نریشن ویک ہے، مگر بعض اسکالرز اسے حسن مانتے ہیں، بعض اسکالرز اسے ضعیف۔ مگر یہ جو واقعہ ہے اس کے اندر جو دعا ہے اس سے ایک کارنامہ ہوا تھا، وہ دعا ہر اسکالر ایکسپٹ کرتے کیونکہ اس کے اندر بہت اسپیشل چیز ہے۔ ایک اینجل 4th ہیون پہ سے نیچے اتر کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی مدد کیا تھا، اور واقعہ ایسا شروع ہوا تھا۔ ابو معلق ایک ٹریڈزمین تھے، آپ انصار کے ٹرائب کے ایک محنتی، ایماندار اور پیسے والے تاجر تھے، مطلب بزنس مین۔ آپ ایک دن سفر کر رہے تھے بنا کوئی گارڈ کے، بنا کوئی آرمر کے، اور جب آپ اکیلے اپنے سامان کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو اس سفر میں اس ریگستان میں ایک چور انہیں پکڑ لیتا ہے۔ جب صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس چور کو کہ جو بھی سامان ہونا لے لے مگر میری جان چھوڑ دے، تو وہ چور یہ کہہ رہا تھا کہ میں سامان بھی لوں گا اور بے جھجک ماروں گا، کیونکہ یہاں سے جو گزرتا ہے میں اس کی موت تو کرتا ہی رہتا ہوں۔ وہاں پہ وہ صحابی رضی اللہ عنہ پریشان ہو جاتے، گھبرا جاتے، مگر پھر اس کے بعد وہ صحابی اس چور سے ایک چیز پوچھتے، مجھے بس نماز پڑھنے دے۔ ایک نریشن میں آتا کہ 2 رکعت، دوسرے نریشن میں آتا کہ 4 رکعت۔ اور یہاں پہ جب یہ صحابی رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے تو آپ ایک سجدے میں بہت خوبصورت دعا کرتے ہیں، اللہ کو بہت ہی بہترین شاندار نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ وہ چور وہیں صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرا ہوا ہے اور بس ان کے نماز کے بعد ان کی گردن الگ کرنے کے لیے ٹھہرا ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ جب صحابی رضی اللہ عنہ کی آخری رکعت چل رہی تھی اور آپ سجدے میں یہ دعا مانگے تو آپ کو ایک عجیب سی آواز آئی، ایک گھوڑے تیزی رفتار کے گھوڑی کی آواز آئی، تلوار کی آواز آئی، جو تیزی رفتار سے آپ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ صحابی رضی اللہ عنہ جب اپنی نماز ختم کر کے آپ پلٹ کے دیکھتے تو وہ چور کی گردن اس کے دھڑ سے ہی الگ تھی، اور آپ جب اس گھوڑے پر سواری کو دیکھے تو آپ پریشان ہو جاتے۔ بہت ہی روشن والا چہرہ، کورڈ پورا اور بہت ہی نور کے ساتھ۔ وہ جو بھی شخص تھا جو گھوڑے پہ سوار کر کے آیا تھا وہ بہت نورانی تھا۔ وہ گھوڑے پہ سواری آپ صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں جو کہ 4 جنت سے نیچے دعا قبول ہونے پر آ کے بچایا ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کی اور اس کے بعد میں اس چور کو آپ سے دور کیا۔ ہمیں ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ جب وہ صحابی رضی اللہ عنہ پہلی بار دعا کرتے تو جنتوں کے دروازے کھل گئے تھے، دوسری بار جب کرتے ہیں تو وہاں کے فرشتے اٹھ بیٹھے تھے، اور تیسری بار جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو یہ فرشتے زمین پہ آ کے وہ صحابی رضی اللہ عنہ کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ وہ دعا اتنی خوبصورت، اتنی بہترین، میں آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ دکھاؤں گا۔ اللهم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد أسألك بعرسك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص يا مغيث أغثني۔ مگر یہاں پہ ہر اسکالر اس دعا کو اس لیے یونیورسلی ایکسیپٹ کرتا ہے کیونکہ اس دعا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہترین ناموں کے ساتھ، بہترین شان کے ساتھ، بہترین قسم کی دعا ہے، تو اسے یونیورسلی ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ جنگ بدر میں بھی گھوڑوں کے پر فرشتے آئے تھے اور ساتھ دیے تھے، اور میں آپ کو میرے پریویس اس میں بول چکا ہوں آلریڈی کہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بتایا تھا کہ میں نے جبریل کو دیکھا علیہ السلام کہ وہ گولڈن ہیلمٹ پہنے ہوئے جنگ میں شامل تھے۔ دیکھ رہے آپ لوگ، تو اللہ سے دعا جب آپ مانگتے تو فرشتے بھی گڑگڑاتے آپ کے لیے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول کرو، یا اللہ اس بندے کی دعا قبول کرو۔ اور فرشتے کچھ غلطی کرے ہوئے رہتے نہیں، ہم انسان غلطی کرے ہوئے رہتے ہیں۔ اب فرشتہ جب گڑگڑا رہا آپ کے لیے تو آپ سوچو آپ کتنے خوش قسمت ہے آپ پہ۔ اور فرشتے مکہ اور مدینہ بھی گارڈ کرتے رہتے ہیں، اور یہ چیز کی روایت ہمیں کیسا پتہ چلی؟ جب آخر الزمان میں دجال ایمرج کریں گا ہر طرف سے، وہ یہودیوں کے ساتھ جو کہ صفان سے وہ نکلیں گا، تو وہ پورا تمام ارتھ کو گھومیں گا، ایسا کوئی شہر نہیں چھوڑیں گا مگر وہ مکہ اور مدینہ میں انٹر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مکہ اور مدینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پروٹیکٹ ہے، 7 راستے رہیں گے اور وہ ایک بھی جگہ سے انٹر نہیں کر پائیں گا، کیونکہ ہر گیٹ پر اپوائنٹڈ اینجلز ہیں جو کہ اس راستے کو ڈیفینڈ کرتے رہ رہے ہیں۔ اور یہ چیز آپ کو صحیح مسلم میں ملیں گی، ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دجال بولے گا I almost have permission to emerge, then I will emerge.
and will travel throughout the earth for 40 days, and I shall not leave any town without entering it, apart from Makkah and Medina, which I will be prevented from entering, because every time I try to enter, there will be an angel with an unsheathed sword in his hand, preventing me from entering. On every gate, there will be angels defending them. मक्का मदीना कने swords के साथ क्या किस्म का गार्ड कर रहे होंगे, जो कि वहां पे शयातीन नहीं घुस सक रहे। एक दफा एक शख्स तो 99 लोगों को भी मार दिया था। ये चीज आप सही बुखारी सही मुस्लिम में भी देखेंगे। और जब वो उसका सफर तय कर लिया था कि अब मैं बुरे काम नहीं करूंगा और अच्छाई की तरफ वो बढ़ रहा था, बीच में उसकी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पे फरिश्तों का दोनों बैच बहस कर रहा था कि ये शख्स जन्नत की ओर जाएगा, ये दोज़ख की ओर। बाद में इस शख्स के ऊपर एक काउंसिल होता है। आप देखिए ये शख्स की मौत हो चुकी, मगर हदीस में इसके बारे में कैसा है देखिए। फरिश्ते यहाँ पे फॉरगिवनेस के फरिश्ते के पनिशमेंट वाले फरिश्ते दोनों बहस कर रहे कि इस शख्स को हम लेके जाएंगे, इस शख्स को हम लेके जाएंगे। तो ऊपर से फिर कमांड आता है, एक सिंपल से एक लॉजिक इस्तेमाल होती है कि मापो उस जगह को जिधर इसकी मौत हुई है, कि जो ये शहर को जाना चाह रहा था अच्छे काम के लिए, अच्छी नीयत के साथ अपने आप को बदलने के, वहां से ये कितना करीब था, और जहां ये शर फैलाया और खतले करा वहां से ये कितना करीब था। तो जब इसका रास्ता मापा जाता है तो मालूम होता है ये अच्छे वाले शहर की तरफ ज्यादा था, मतलब इसकी नीयत से ये अच्छा बनकर वो शहर के करीब था, तो वहां का सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड था। तो रहम वाले फरिश्ते इसकी रूह लेके जाते, वरना उसके ऊपर अजाब होता, और आपको मालूम कि अजाब के बाद दोज़ख रहती रहती। फरिश्तों के भी लिमिट्स रहते। ये वाकया हमें इसरा वल मिराज के सफर से मालूम हुआ। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जन्नत पे अलग अलग नबियों से मिलाते हुए लेके जा रहे थे, तो आप एक मुकाम पे आके आप रुक गए थे। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम बोले थे कि या रसूलल्लाह, अब मैं इसके आगे नहीं जा सकता, अगर मैं इसके आगे बढ़ा तो मैं जल जाऊंगा। और वो जो स्टॉपिंग पॉइंट था वो था सिदरतुल मुंतहा का, वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड ट्री। उस खूबसूरत झाड़ की क्या तारीफ बताऊं, वो इतना खूबसूरत झाड़, इतना मिराकुलस झाड़, वो सिदर ट्री। इसलिए हमारे पास हदीसों में है सिदर के पत्ते इस्तेमाल करो, सिदर का झाड़ नहीं, सिदर के पत्ते इस्तेमाल करो, 7 पत्ते, उसके अंदर कई सारे शिफा है। उसके पर दम करो, पियो, नहाओ, उससे बहुत ज्यादा आपको फायदा होंगे। बाज़ उलमा तो बोलते हैं कि एवरी मंथ एक टाइम तो भी सिदर के पानी से नहाना, 7 लीव्स को लेके क्रश करना, उसको दम करना और उसके बाद नहाना, ये कई चीजों से आपको प्रोटेक्ट करती। वहां पे जिब्रील अलैहिस्सलाम रुक जाते, फिर उसके बाद उस पॉइंट से आगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बढ़ते, और फिर हमें नमाजों का तोहफा मिलता है। मगर हम इंसान, हम अशरफुल मखलूकात है, द बेस्ट ऑफ ऑल क्रिएशन, कैसा नहीं रहेंगे। आप आजकल देखो हमारे हाथों में ही कितने सारे वेन्स है, क्या एक इंसान इतना सारे वेन्स इतना परफेक्शन के साथ बॉडी क्रिएट कर सकता? नहीं कर सकता, इट इज हाईली इम्पॉसिबल। एक हदीस में आता है कि अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु उनके ख्वाब में देखते हैं कि एक फरिश्ते उनको अज़ान सिखा रहे हैं। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाते हैं और बोलते हैं उस ख्वाब के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते हैं कि ये सही है, और वो चीजें जो वो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु ख्वाब में सीखे थे, वो चीज बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहते हैं, और बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु फिर अपने अज़ान में उस हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। हर चीज के जैसा मैं आप लोगों को बोला, एंजल्स रहते हैं, हेवन के अलग है, हेल के अलग है, अपने गेट कीपर अलग है, फरिश्ते खाते पीते नहीं, हर एक का एक अपॉइंटेड टास्क अलग है। एक वाकया ताइफ के वक्त जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के लोग नुकसान पहुंचा रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम माउंटेन के फरिश्ते के साथ नीचे उतरते हैं और कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और मेरे साथ इस एंजल ऑफ माउंटेन को भेजा, आप कमांड करिए कि आपकी विश क्या है। तो वहां पे वो पहाड़ों को कंट्रोल करने वाला फरिश्ता बोलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म दे, इन ताइफ के लोगों को मैं 2 पहाड़ों के बीच में ही चिपका देता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने रहम दिल के, आप जबरदस्त चीज बोलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, इन्हें मत कुचलो, कि मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इनमें से नहीं तो इनके औलाद में से तो सही एक अल्लाह की इबादत करने वालों में से जरूर बनाएंगे, मतलब वो हक पे रहेंगे। तो वो चीज के मामले में वो लोगों के ऊपर वो पनिशमेंट माफ हो जाती है। मगर यहाँ पे हमें लेसन क्या मिल रहा कि माउंटेन का भी एक अलग फरिश्ता है जो कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को कंपनी देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आया, वो टास्क करने के लिए कि 2 माउंटेन्स के बीच में वो कौम को ही खत्म कर दे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त हम क्या देखे थे कि 3-4 फरिश्ते थे जो कि कौम लूत को पनिशमेंट और बर्बाद करने के लिए आए थे। हर एंजल का एक अलग टास्क, और फरिश्ते आपके अतराफ हमेशा रहते, मगर आप माहौल अपने अतराफ ऐसा बनाना कि फरिश्ते आपके अतराफ रहे, वैसा पाक साफ रहना, इबादतगार रहना, तिलावत करना, जिक्र करना, जबान साफ रखना अपनी। तफसीर इब्न कतीर और अल कुर्तुबी से हमें यह भी पता चलता है कि एंजल्स ना ही सिर्फ आपके मौत के वक्त नीचे आते हैं, बल्कि आपके ऊपर कुछ बड़ी आजमाइश आ गई, आपके ऊपर कोई मुश्किल आ गई, तो जब भी मोमिन के अतराफ फरिश्ते आते हैं। तो हमेशा जब मुश्किल वक्त में रहते हैं दुआ करिए, तो फरिश्ते भी आपके रहम के लिए दुआ करते हैं। अच्छा, हमें सूरह अल फजर से यह पता चलता है कि जब फरिश्ते आएंगे आखिर उस ज़मा के वक्त, तो वो रैंक्स में आएंगे,
जब फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में ठहरते वो एक रैंक में ठहरते, एक रोज में ठहरते। इसलिए आप गौर करिए कि मस्जिद में जब इमाम नमाज शुरू करने से पहले आप पीछे पलट के लेफ्ट और राइट पे देखते हैं। हमें रोज में ऐसे ठहरना है कि जैसे फरिश्ते रोज में ठहरते हैं, उतने परफेक्शन के साथ एक एक रो अपने को फॉलो करना है। वैसे ही सेम तरीके से फरिश्ते अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत जन्नतों में कर रहे हैं और उसका रेप्लिका हम इस दुनिया में मस्जिद में हम करते रहते हैं। अच्छा, आप लोग को मालूम है कि जो फरिश्ते आपके साथ अभी भी है वो जन्नत में भी रहेंगे हमारे साथ इंशाअल्लाह। और इस चीज के बारे में कुरान चैप्टर नंबर 41-31 में देखेंगे हम लोग कि वी वर योर फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड एंड वी विल बी इन द हियर आफ्टर। वहां पे हम याद करेंगे, हम देखेंगे कैसा अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बुरे चीजों से बचाए थे, बुरे वक्त से बचाए थे, कैसा हमारे ऊपर पीछे प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी, हमें लोग नुकसान पहुंचाना चाहते थे, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कैसा बचाए थे वो हमें अभी भी इल्म नहीं है। आपको और हमको अभी भी इल्म नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें कितने सारे बुरी चीजों से बचा रहे हैं। देखो यहूदियाना लोग, शयातीन अभी भी काम करते रह रहे दिन रात आपको नुकसान देने के लिए, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहीं ना कहीं से हमारी हिफाजत कर रहे हैं। इसलिए नमाज कायम रखो, अस्कार को कायम रखो। आपको फरिश्तों से घिरते अतराफ, अल्लाह के हुक्म से हमारे अतराफ अस्कार करने का फरिश्तों से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, एक्सीडेंट से, बीमारियों से और क्या क्या पता नहीं क्या क्या शैतानी ऐसे चीजों से जो हमें दिखते भी नहीं है। आप लोगों को मालूम है जब कोई चीज का दर्द होता है, कुरान की तिलावत होती है, मैं आपको बताया ना कि फरिश्ते सुनते हैं, फरिश्ते घेरते हैं, उनके विंग्स वो लोग एक्सपैंड कर लेते हैं। अब ये एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जब सूरह बकरा पढ़ रहे थे और फरिश्तों को आप डिसेंड होते हुए देख रहे थे, तो ऐसे ही रहता। जब आप जिक्र करते, जब आप तिलावत करते, तो पूरे हमारे अच्छाइयाँ ये फरिश्ते जमा करके लेके जाते हैं। अभी आप जिक्र करिए, आप सुभान अल्लाह बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर बोलिए, आप अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद, आप दुरूद भेजिए। जन्नतों में अभी फरिश्ते आपके लिए खूबसूरत से खूबसूरत आपके लिए घर, गार्डन, खेत, हर चीज वो बना रहे हैं आपके लिए, दरिया वगैरह सब चीज बनते जा रही है और इतने खूबसूरत चीजें, इतने तोहफे आपके लिए बनाए जा रहे हैं, खाने पीने की चीजें, रहन सहन के कपड़े, मकान, ज्वेलरी के आपके आंख कभी ना देखे हो, आपके कान कभी ना सुने हो, आपका दिल कभी सोचा ना हो और आपका दिमाग कभी इमेजिन ना किया हो। तो कभी भी जन्नत के बारे में जब बोलते तो हम ये जो दुनिया में जो चीजें छोटे छोटे देखे उसको देख के हम इमेजिन कर लेते, हम जो टीवी में देखे हम वो चीज को देख के हम इमेजिन कर लेते, मगर जन्नत ऐसी चीज है कि आपकी आंख, कान, आपका दिमाग, दिल कभी वो चीज सोचा नहीं होगा। इस एक जबरदस्त चीज है, हदीस हमें पता चलता है कि एक रूस्टर जब आवाज करता है तो हमें दुआ करना जरूरी है, क्योंकि रूस्टर फरिश्तों को देखता है तो वो आवाज करता है। तो रूस्टर फरिश्तों को देख के आवाज करता, और उस वक्त इसलिए दुआ करना क्योंकि आपकी दुआ फिर वो फरिश्ता कलेक्ट करके लेके जाता है। और वही उल्टी चीज आप देखो, आप जब गधे को देखेंगे या कुत्ते को आप देखेंगे और वो अगर चीखना रोना उनका चलता है तो आपको औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना है, क्योंकि वो शयातीन को देख रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग चीजें, जानवरों को वो चीजें दिखते जो हमारे ह्यूमन आई को नहीं दिखते। कुरान के हिसाब से हमें ये बताया गया है कि दोज़ख के ऊपर तकरीबन 19 एंजल सेट किए गए हैं और मालिक गेट कीपर है उस दोज़ख के दरवाजे के। और आप लोग मालूम है, जैसे मैं फरिश्तों का भी डिस्क्रिप्शन दे रहा था इतना खूबसूरत, दोज़ख के लिटरली ऑपोजिट रहेंगे, उनमें से पूरा रहम खींचा जाएगा, वहशी रहेंगे, बेरहम रहेंगे, के अंदर आप 1% के भी रहमत नहीं देखेंगे। वो दोज़ख के फरिश्ते ऐसे बनाए गए हैं कि वो अल्लाह का हुक्म तो हमेशा मानेंगे, मगर जो दोज़ख के लोग हैं उनके ऊपर बेइंतहा वो लोग सजा देते रहेंगे। तो इसलिए ये जो डिसबिलीवर्स पूरा जुल्म कर रहे हैं ना पूरे दुनिया में, गाजा के लोगों के साथ और मुसलमान और दूसरे लोगों को बेइंतहा जो मार रहे, तकलीफ दे रहे हैं, उनका आखिरत में बहुत बुरा हाल होने वाला है। इन फरिश्तों का गार्डियंस का नाम एंजल्स ऑफ पनिशमेंट है, हमें बताया गया है इनका नाम है अज़्ज़बानिया, और इनका यही काम है कि खराब लोगों को दोज़ख में खींचें और वहां पे उनको दर्दनाक पनिशमेंट देते रहे। इसलिए हमें तिरमिदी में एक हदीस मिलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जो भी शख्स अल्लाह सुब्हानहू तआला से दिन में 3 बार जन्नत मांगेगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, तो उससे जन्नत दिया जाएगा, और 3 बार जो दोज़ख से पनाह मांगेगा उसे दोज़ख की आग से बचा दिया जाएगा। छोटे छोटे चीजें ही है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नह, और दोज़ख से बचने के लिए अल्लाहुम्मा अज्जिरनी मिनन नार। अच्छा, फरिश्ते आपके जो हमेशा चीजों को रिकॉर्ड करते हैं उन्हें कहते हैं द नोबल रिकॉर्डर्स, और इनका नाम अरबी में है किरामान कातिबिन, नोन एज द नोबल रिकॉर्डर्स। राइट साइड पे पूरे अच्छे अमल आपके रिकॉर्ड होते हैं, लेफ्ट साइड पे आपके पूरे बुरे अमल रिकॉर्ड होते हैं। कि आप जब गुनाह करते हैं, गलती करते हैं, तो जो लेफ्ट वाला जो बुरे आपके अमल को रिकॉर्ड करता है वो पेन थोड़ा लिफ्ट करा हुआ रहता है कुछ घंटों तक, ताकि अगर आप वो गुनाह करने के बाद माफी मांग ले तो वो चीज को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसलिए जिंदगी में बरकत होना है तो इस्तग़फ़ार का जबान पे जिक्र होना ज्यादा है, क्योंकि भूल चुक में भी बास टाइम ऐसे गुनाह हो जाते हैं हमसे जो कि हमें पता नहीं है, मगर ऑन द वेट ऑफ स्केल वो बहुत ज्यादा रहता है। और यहाँ पे अच्छाई में अगर आप सिर्फ नियत भी कर लेते कि मैं ये अच्छा काम करूंगा, आप सोचते भी है, नियत भी करते, तो आपको उसका सवाब फौरी रिकॉर्ड हो जाता। सुभान अल्लाह। देख रहे हैं, अच्छाई में फास्ट है, बुराई में थोड़े टाइम के लिए बस वो पेन ऊपर रहेगा। सिंसियर अगर आप माफी मांग लिए, सिंसियर अगर आप तौबा करें तो वो चीज रिकॉर्ड नहीं होती। हिजामा इज वन ऑफ द
बेस्ट रेमेडी और एक बहुत ही आले दर्जे का सुन्नत है। ये आपको ये सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग नहीं करता मगर मेंटली भी बहुत स्ट्रांग करता है। शयातीन हिजामा से चिढ़ते ये लोग, ये बेइंतहा चिढ़ते, नफरत करते ये लोग। एक ज़ईफ हदीस है, वीक नरेशन है इसका। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ये बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि जब वो इसरा वल मिराज का सफर कर रहे थे तो वो जब पास हो रहे थे तो हर वक्त वो एक ग्रुप ऑफ एंजल्स को देखे, एक ग्रुप ऑफ असेंबल्ड एंजल्स को देखे, और वहां पे वो फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते जा रहे थे कि अपनी उम्मत को हिजामा करो, बोलो या रसूलुल्लाह अपनी उम्मत को हिजामा करो। बोलो मतलब ये चीज चलो वीक नरेशन होंगी, ज़ईफ होंगी, नो प्रॉब्लम, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते थे और हिजामा को लाइट लेने की जरूरत नहीं है। सुन्ना डेज में हिजामा आप लोग कैसा भी कराए, बड़े से बड़े बीमारी रहने दो, हिजामा आपको उस चीज में मदद करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इतना भी था कि जब वो यहूदन औरत आपको जहर भी खिला दी थी तो आपने फौरी हिजामा किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त बहुत परेशान हो गए थे। आपका अपॉइंटमेंट था जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ और जिब्रील अलैहिस्सलाम आ ही नहीं रहे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान होकर ये सोचे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नाराज है मुझसे कि जिब्रील आके मिल ही नहीं रहे। बाद में बहुत वक्त गुजर जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर के बाहर कदम रखते तो आप जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखते। आप जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछते हैं कि क्यों इतने वक्त से मिल नहीं रहे। वहां पे हमें ये चीज पता चलती है कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये बताया कि या रसूलुल्लाह हम उस घर में नहीं घुसते जिस घर में कुत्ता हो या स्टैचू हो या कोई शख्स जो नापाकी में हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे थोड़ा शॉक हो जाते हैं और जब बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में देखते तो एक कुत्ते का बच्चा आ जाता है। अब आप सोचो कि कुत्ता हमारे पास क्यों नहीं रखना होगा, और यही ऑपोजिट आप चीज वहां पे देखो वेस्टर्न वर्ल्ड में औलादे नहीं रहते मगर उनके साथ कुत्ते जरूर रहते घर में, और ये सिर्फ एक्सेप्शन फॉर हंटिंग डॉग्स है। जो नॉर्मली लोग पेट्स कुत्तों को रखते अपने घरों में फॉर फन या लीजर कोई भी एक्टिविटी के लिए, उस घर में फरिश्ते बिल्कुल भी नहीं आते। यहाँ पे आप देखिए फरिश्तों के सरदार कदम नहीं रखे तो नॉर्मल फरिश्ते आपके घर में कहां से कदम रखेंगे, फिर वो बरकत वो चीजें कहां से आएंगी आपके घर में। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था हमें कि हम लोग जो बीमार शख्स है उसको विजिट करना, ये बहुत जरूरी चीज है। क्यों? अब ये चीज बताने के बाद मैं आपको लिख के दे सकता हूं कि आपके दोस्त में, रिश्तेदारों में, कहीं पर भी कोई अगर बीमार शख्स है ना, आप पहले उठ के जाते हैं। वो क्यों जाते? क्योंकि जब एक बंदा एक बीमार शख्स को विजिट करता तो 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआ करते। किस शख्स के लिए? जो बीमार है नहीं, जो बीमार को विजिट कर रहा। अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने यह बताया कि मैंने सुना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो दूसरे मुसलमान को सुबह में जाता और उस वक्त पे 70,000 फरिश्ते उसके ऊपर बेइंतहा ब्लेसिंग्स भेजते रहते जब तक वो रात में वापस ना जाए। और अगर वही मोमिन उसके मोमिन भाई को रात में विजिट करता है तो रात में 70,000 फरिश्ते उसके लिए इतना बेइंतहा ब्लेसिंग्स भेजते, इतना बेइंतहा उसके लिए दुआ करते कि वो दुआएं सुबह तक चलते। अगर सुबह में किया तो रात तक, अगर रात में किया तो सुबह तक। क्या राज होगा? एक बीमार शख्स को आप खाली विजिट करके आप वापस आ गए तो आपके लिए बेइंतहा फरिश्ते दुआएं कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम है एंजल्स शिफ्ट करते रहते हमेशा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि सुबह के ग्रुप ऑफ फरिश्तों का अलग है और रात के ग्रुप ऑफ फरिश्तों का अलग है। ये फरिश्ते जो सुबह में आपके साथ थे, जैसा ही रात ढलती ये अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास जाते और आपका पूरा डेटा देते। फिर रात के फरिश्ते जो रहते सुबह होने के बाद रात में आप क्या क्या किए, कैसा किए, किस हाल में बंदे को छोड़ कर आए, वो सब चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास वो डेटा देते रहते। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो सब चीज पता रहती, मगर फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला पूछते उन फरिश्तों से कि तुमने किस शक्ल में मेरे बंदे को देखा और उसे छोड़ कर आए। चीज आपको हदीस में देखने को मिल जाएगी। और सबसे बेस्ट टाइम आपको मालूम है असर वन ऑफ द ब्यूटीफुल टाइम्स क्यों है? क्योंकि उस वक्त पे सुबह और रात के दोनों फरिश्तों का बैच मिलता। तो आप सोचिए जब इनका शिफ्ट हो रहा और आप असर की नमाज अदा कर रहे तो दोनों ग्रुप सुबह का और रात का फरिश्तों का ग्रुप वो चीज को रिकॉर्ड कर रहा और वो प्रेजेंट करता अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास। इसलिए एक हदीस है कि जो शख्स जानबूझकर असर की नमाज छोड़े तो वह ऐसे है कि उसका माल बर्बाद, उसकी औलाद, उसका घर, सब चीज बर्बाद है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स मैं यहाँ पे इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि फरिश्ते ना कभी नाफरमानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की नहीं करे। ये इतनी पाक साफ मखलूक है, इनका मौजूदगी रहना आपके अतराफ में, आपके घर में आपके लिए बहुत बड़ी बरकत की चीज है। आपके बच्चे सेफ रहते, आप सेफ रहते, आपकी जॉब सेफ रहती। इसलिए कुरान की तिलावत क्यों करना है? क्योंकि फरिश्ते उनको सुनने के लिए आते हैं। उसके बाद आपका घर भी रोशन रहता। अच्छा आप लोगों को मालूम है जब आप लोग रोजा रहते तो फरिश्ते आपके लिए बहुत दुआ करते। एक रिवायत है जिधर पता चलता है कि उन्होंने बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा कि आइए बिलाल हमारे साथ खाना खाइए। तो वहां पे बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैं रोजा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे ये बताते हैं कि सुभान अल्लाह, सबसे ज्यादा बिलाल की ग़िज़ा तो जन्नतों में है, और ए बिलाल क्या तुम्हें पता है
کہ جو شخص روزہ رہتا ہے اس کے ہڈیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف کرتے رہتے ہیں، اور اس شخص جو روزہ رہتا ہے اس کے لیے فرشتے بے انتہا رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور جب تک تب تک اس کے آگے لوگ کھانا کھاتے ہوئے نہ رہیں۔ یہ بہت خاص چیز ہمارے لوگوں کے لیے، جو کہ صدقہ تو دور، زکوٰۃ سے بھی یہ لوگ بچتے، زکوٰۃ کو چھوڑ دیتے۔ اس سے آپ سمجھ جائے کہ صدقہ اتنی بڑی چیز ہے تو زکوٰۃ تو بے انتہا بڑی چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ہر دن 2 فرشتے نیچے آتے ہیں جنتوں سے، ایک کہتا ہے کہ اے اللہ بے انتہا برکت اس بندے کو دے جو کہ آپ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے او اللہ ڈسٹرائے ایوری مائسر، مطلب وہ شخص جو کہ بالکل خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا ہے، بہت بے انتہا بخیل ہے۔ آپ کو بتا دوں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا نہ ہی صرف اچھے کاموں میں، مسجد میں، مدرسوں میں، یہی نہیں ہے۔ آپ اگر لقمہ اپنی اولاد، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں کو کھلائے تو وہ بھی چیریٹی میں کاؤنٹ ہوتا، تو وہ بھی ایک طریقے کا صدقہ ہے۔ آپ پیسہ سمیٹ لیے، بس آپ دبا لے کے رکھ لیے، یہ بہت بڑا کاؤنٹ ہمیں آخرت میں ہوتا ہے اس کا۔ تو ایوری ڈے 2 فرشتے آتے اور وہ دیکھا جاتا کہ آپ اپنی دولت کو بس پھنسا کر جمع کر رکھ رہے یا آپ خرچ بھی کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک شخص جب نماز کے لیے مسجد جاتا ہے تو اس کو اتنا بے انتہا ثواب کیوں ہے؟ اگر وہ گھر پہ پڑھے تو بہت کم ثواب ہے، مگر جب وہ مسجد جائے تو وہ چیز 27 ٹائمز ملٹیپلائی ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس کا وضو کرنا، اس کے بعد نکلنا، ہر قدم چلنا، اس کے لیے ایک رینک ایلیویشن ہے، ایک نیکی بڑھتی، ایک رینک بڑھتا اس کا، اور اس کی ایک گناہ کٹ آف ہونا شروع ہوتا۔ فرشتے اس کے اوپر لگاتار بلیسنگز بھیجتے ہی رہتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ اور ہم کو یہ پتا چل جائے کہ مسجد میں اگر پہلی رو میں آپ کو جگہ مل جاتی ہے اور آپ ٹھہر جاتے وہاں عبادت کرتے، اگر اس کا ثواب آپ کو پتا چل جاتا تو لٹرلی ہر کوئی اس کے لیے کمپٹیشن کرتا، اور ایسا کمپٹیشن جو کہ بس ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے رہے گا، کیونکہ اتنا بے انتہا ثواب برکتیں پہلی رو میں ہیں جو کہ دوسرے روز میں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ سب سے زیادہ بلیسنگز مسجد میں فرسٹ والے رو میں، پھر اس سے کم سیکنڈ والے رو میں، پھر اس سے کم اس کے بعد والے رو میں۔ پہلے والے رو میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں ان کے اوپر فرشتے لگاتار بلیسنگز بھیجتے رہتے ہیں۔ اور آپ یوزولی یہ بھی سنیں گے کہ جمعے کی نماز کے لیے جو جلدی جاتا ہے، آپ بنا کوئی چیز سیکریفائس کرے آپ کو وہ سیکریفائس قربانی کا آپ کو ثواب مل جاتا۔ اور یہ بھی رینکنگ میں جتنا جلدی آپ جمعے کے دن نماز کو جاتے ہیں۔ اور وہ آرڈر کیسا ہے؟ جو سب سے جلدی آتا ہے وہ ایسے کہ وہ اونٹ قربان کیے ہو، اور سب سے جو کم قربانی ہے وہ ہے انڈے کی، مطلب وہ جو سب سے لیٹ آتا وہ بندہ، اس کا ایسا آنا ہے کہ سب سے چھوٹی قربانی دی ویسا۔ اور پھر جب امام ممبر پہ ٹھہر جاتے ہیں تو فرشتے اپنے ریکارڈز کو بھی فولڈ کرتے، بعد میں دوسرے لوگوں کا نام نہیں لکھتے، اور وہ بھی امام کیا بول رہے ہیں وہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ مطلب یہاں سے خطبہ سننا ہی عبادت آپ کی شروع ہو چکی ہے۔ ہمیں ایک روایت سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جب امام سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہتے ہیں اور آپ آمین کہتے ہو، اور اگر آپ کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ مل جائے تو آپ کے پرانے گناہ معاف۔ جی ہاں، آپ سمجھ میں آ رہا آپ لوگ کو کہ مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ کا اجر 27 ٹائم زیادہ کیوں ہے؟ ایک مومن کا جب آخری سانسیں چلتے رہتی ہے تو فرشتے بہترین خوشبودار مشک کی خوشبو کے ساتھ شراؤڈز لے کر آتے ہیں، اور وہ بے انتہا خوشبو کے ساتھ جو کہ جنتوں میں رہتی ہے، اور وہ فرشتے ملائک الموت کے ساتھ آتے ہیں، اور ایک اگر مومن بہت اچھا رہتا ہے تو اسے بولتے ہیں اے اچھی روح باہر آ جا۔ پھر وہ جو مومن اچھا عبادت گار رہتا ہے وہ ایسے باہر آتا ہے جیسے کہ ایک پانی کا ٹپکا آپ کے جگ میں سے باہر ہے، اور پھر وہ سول کو یہ فرشتے ریپ کرتے ہیں جو کہ بے انتہا خوشبو والا آتا ہے، وہ پھر جنتوں کی طرف جاتے ہیں، اور وہی الٹی چیز گنہگاروں کے ساتھ، کفار کے ساتھ ہوتی ہے، اور ان کی روح اتنے خراب طریقے سے باہر آتی ہے جیسے کہ جیسے کچا بیگ تھونس کے اوپر مار کے زور سے کھینچ رہے ہو، کیونکہ وہ روح اس باڈی کو چپک جاتی، وہ باہر ہی نہیں آنا چاہتی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس وقت ایک انسان کی روح جا رہی ہو اس وقت پر کچھ برا دعا یا کچھ برا نہ بولے، کیونکہ اس وقت فرشتے رہتے ہیں اور وہ لوگ آمین بولتے ہیں، جو بھی دعا آخری سانسوں میں چلتے رہتی ہے۔ اور یہ جو آپ کے تمام اطراف فرشتے ہمیشہ پروٹیکشن کرتے رہتے، صبح کے، رات کے، آزو بازو، جب آپ کا آخری وقت آ جاتا تو یہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے، یہ بولتے کہ یہ حکم اللہ کا ہے اور اب ہم یہ بندے کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے۔ تو آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہا کہ فرشتے ہمیں ہمیشہ پروٹیکٹ کرتے ایکسیپٹ فار ڈیتھ کے وقت وہ فرشتے پیچھے ہٹ جاتے۔ پھر آپ ایسے بھی فرشتے سنیں گے جو کہ آپ کو خبر میں ملیں گے، جو کہ ہم اور آپ منکر نکیر کے نام سے جانتے ہیں۔ جو اچھے رہیں گے مومن، ان کو وہ لوگ بہت خوبصورت طریقے سے، بہت خوبصورت شکل میں آئیں گے، اور جو کفار، جو برے لوگ رہیں گے، نافرمان رہیں گے، وہ لوگ بہت ہی وحشی شکل کے ساتھ آئیں گے۔ اچھا، فرشتے
सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त मौजूद नहीं थे। कई सारी रिवायतों से हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त के मौजूद फरिश्तों के बारे में बताए तो हमें पता चला। आज के वक्त भी आप देखिए तुर्किया में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद जो बिल्डिंग्स के अंदर जो अंदर बचे हुए आदमियां फंसे हुए हैं, वो बोलते थे कोई सफेद शक्ल के कोई लोग आ रहे हमें खाना दे रहे, और वो खाना और वो पानी के बाद हमें भूख नहीं लग रही, प्यास नहीं लग रही। इसके कई सारे रिपोर्ट्स देखने को मिले। ये चीज आप गाजा के लोगों के, गाजा के बच्चों के साथ भी देखे होंगे कि जो बिल्डिंग के अंदर फंसे हुए बच्चे हैं वो ऐसे मखलूकों को देख रहे थे जो सफेद कपड़े में है, घोड़े में आ रहे हैं, और उन्हें दिलासा दे रहे थे कि तुम ठीक हो जाएंगे, तुम सब्र करो, तुम ठीक हो जाएंगे। तो वाकया आज भी हो रहे हैं, मगर हमारा ईमान इतना कमजोर हो गया कि हम इन मलाइका में या अल्लाह के भेजे हुए फरिश्तों में हम ईमान उतना नहीं रख रहे, अल्लाह में हम तखवा इतना नहीं है, तौहीद नहीं हमारे लोगों में। तो ये अतराफ के मलाइका में इतने अच्छाइयों में लोग मान ही नहीं रहे इस वक्त पे। तो ये गाजा में रहने दो, तुर्किया में रहने दो, बच्चे अपने आंखों से देखे, वो खुद बोले। और ऐसा नहीं है कि बच्चे हैलुसिनेट कर रहे, बड़े से बड़े अच्छे उम्र वाले लोग भी बोले अच्छा जंगे बदर में जैसा फरिश्ते साथ दिए थे वैसी आज के वक्त में भी जो सही हक पे लड़ने वाले लोग हैं ना, उनके साथ भी फरिश्ते साथ दे रहे। रशिया से लड़ लिया, अफगानिया, अमेरिका से लड़ लिया, हर थर्ड वर्ल्ड कंट्री से लड़ लिए वो लोग हमेशा अनडिफीटेड रहे। भाई रोटी खजूर दूध वाले पहाड़ों में रहने वाले उनको कोई डिफीट ही नहीं कर सका। आज अब अफगानिस्तान के व्लॉग्स देखो, सर खुजाते अब भाई इन लोग इतने मॉडर्न वेपन्स ये चीजों को डिफीट कैसा करें। जोसेफ पेरेस का क्लेम है, जो कि पहला डिप्लॉयमेंट वो लोग अफगानिस्तान को भेजे थे। जोसेफ पेरेस खुद बोला था कि वो उसके दोस्त के सर के ऊपर 2 फरिश्ते देखा था और वो देख के परेशान हो गया था, मतलब तरीके से एक अजीब मखलूक। और उसके बाद चंद वक्त के बाद ही एक ऐसा खतरनाक मिसाइल एक्सप्लोजिव उसके दोस्त के ऊपर फटता है कि वो मर ही जाता है, वो कॉम्बैट में मर जाता है, और उसके साथ के पूरे आर्मी वाले। तो आप लोग गौर करिए, फरिश्ते हैं मौजूद रहते वो जंग में भी, क्योंकि अगर ये लोग ये शैतानी टेक्नोलॉजी के साथ सामने आ रहे तो आप इतना ईमान रखना कि आपके साथ भी कुछ ऐसे चीजें रहते जो कि इनके शैतानी टेक्नोलॉजीज को डिफीट कर सके। तो दोस्तों कैसी दिखी आप लोग को वीडियो, कैसे देखा आपको ये वर्ल्ड ऑफ एंजल्स, नए नए चीजें, ये वर्ल्ड ऑफ मलाइका के बारे में एक जबरदस्त रोशनी नूर से बनी हुई चीज जो कि हमसे पहले, बहुत पहले और विद नो फ्री विल और हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करते हुए, हमेशा उनका हुक्म मानते हुए। तो होप आप लोग ये वीडियो पसंद आया। प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ, सपोर्ट करिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को शेयर करके, लाइक करके, कमेंट करके क्या अगला वीडियो क्या देखेंगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम के ऊपर भी पर्टिकुलरली एक अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, क्यों बोले तो इस वर्ल्ड ऑफ एंजल्स में हम नहीं मिला सकते, जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक टॉपिक अलग रखेंगे। आप सपोर्ट कर सकते हैं हमारे चैनल को शेयर करके, इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज में, यूपीआई के जरिए, सुपर चैट्स के जरिए। और हमारा तहे दिल से शुक्रिया तमाम हमारे डोनर्स को जो कि गूगल पे, फोन पे, यूपीआई के जरिए, सुपर चैट्स के जरिए और तमाम शेयरिंग के जरिए हमारे कंटेंट को और चैनल को सपोर्ट दिखाते हुए आ रहे हैं। हम इंशाल्लाह आगे नए नए टॉपिक्स के साथ जरूर रहेंगे। आपके कमेंट्स भी हमारे लिए जरूरी है। दुआ में याद रखिए हमें, हमारी टीम को। फिर मिलेंगे जल्द एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, सी यू सून, अस्सलाम वालेकुम।